would start our session now with a Tilawat al-Quran. And just before that, I would like to inform you all that today's session will be taken by Mr. Awaf Faki, who is the speaker of the day. He is here with us already, Alhamdulillah. He is assistant professor at Anjuman Islam uh, College in Kalsegar Technical Campus. And we also have with us Ms. Asma Firdos. She is the School Development Program Head at Association of Muslim Professionals. So after I do the Tirawat Quran, I would request Ms. Asma Firdos to kindly take us through the brief introduction of AMP, and then we'll start our live session with Mr. Awaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. So I would now request Ms. Asma Firdos to kindly take over this session and do a little bit introduction of AMP. I would share the slides with you all. Thank you. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all. I'm Mrs. Asma Firdos, the National Head of SDP, the School Development Program. On behalf of the President and the entire team of AMP, welcomes you to today's seminar on Career in Engineering. This is the third seminar conducted in line with the series of online career guidance seminars conducted by the AMP for 11 days by 11 different speakers. Before beginning the session, I would like to brief the attendees about AMP, its vision, its mission, and its achievements. The abbreviation AMP stands for the Association of Muslim Professionals. The AMP is a AMP has completed 12 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP is registered in India, USA, UK, and Australia as a non-profit organization. Currently, AMP has more than 100 plus active chapters spread across 25 states across India. The achievements of AMP can be determined under 5 different domains. It has its mission, and it works with the mission of empowerment the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. The mission of AMP is to be a model community which is advanced in education, which is socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and also economically dynamic. The achievements of AMP can be determined under 5 different domains. The first one, the School Development Program, or the SDP. Under this domain, AMP has connected with around 800 plus schools by conducting 2,750 plus skill development lectures, by which around 275,000 students have been benefited. AMP also has conducted 100 plus teachers training and parenting workshops under the School Development Program. The second achievement, AMP has set up an Employment Assistance Cell, or the EAC, with the intention of providing jobs to the youth. It has conducted around 350 plus job fairs and job drives through which 20,000 plus candidates have got employment. AMP has also conducted 200 plus employability trainings, which has benefited 15,000 plus graduates. With the intention of providing financial support and stability to the needy students to continue their higher education, AMP has provided scholarships to around 800 plus students. AMP has also supported 750 orphans to continue their education. It has tried to transform 250 plus families by assisting them to become self-employed. AMP has its own resource center with 600 plus career counselors. This resource center has counseled around 2,000 plus students to help them in their decision making.
Awards and partnerships or collaborations are very important for every organization. AMP has awarded 280 plus renowned educationists and partnered with 30 plus partners, including the state governments, and 50 plus NGOs to conduct skill training sessions and job fairs. It has also partnered 50 plus NGOs for the various programs. This is all about AMP, its mission, vision, and its achievements. Before beginning today's session on career in engineering, I would like to brief you regarding the necessary guidelines to be followed during the session. All the participants will be on mute. If any participant has any doubt or question, then he or she shall raise the question in the QA box only. Please do not write your questions in your chat box. After the session is completed, the speaker shall try to answer the questions. We also will be sharing the live link in case if anyone is finding it hard to join the session on Zoom app. You can attend the session on Facebook Live app also. That is from my end. Over to Vapshak. So Over to I the request, speaker. Yeah, over to the speaker. So you can start the session. request Mr. Awaf Fakhi to take it over from here and start the session. Thank you. Yeah. Assalam. Thank you so much for AMP team for inviting me, and thank you so much for all this. For all the attendees over here, I'll make sure this coming will divide the complete 60 minutes. The first part, 30 minutes, I'll be talking to you about the engineering, the different fields, the different domain what we have. And the next 30 minutes, we can start taking up different kind of questions. Already I can see few of the questions for it, but I would love to answer in the question answer session that we can keep for complete for 30 minutes so that we can have a healthy discussion among ourselves. Okay. With this, our agenda is what is exactly is engineering, what scope does engineering exactly have. So that's the two things what we'll be covering up in next 30 minutes, my dear colleagues, the parents, students who will be attending this session. Let's start with that. When you're talking about engineering, what I feel, trust me, whichever field you belong to, my dear friends, my dear colleagues, parents, whichever field you put your student into, either it could be IT, either it could be computer, either it could be mechanical, either it could be automobile, either it could be civil, electrical, various domains are there. If you're talking about Mumbai, Navi Mumbai, Maharashtra, India. My dear parents and students, trust me, engineering is all about critical thinking. That's what I feel. Because you will find many people who have done into mechanical, who have entered into software later on. Many people who have entered like doing from computers, they have entered into administration. Many people you would like to talk about people who have done electrical, they are into software domain. So there are vice versa for it. Okay, the things happen because it depends what kind of challenges, what kind of opportunities you will be getting in future. So that only Allah knows about it, and your God knows about it, right? So it keeps on varying it. So if you're talking about engineering, make sure if you are thinking about developing yourself as a critical thinker, trust me, then you should enter engineering. That will really be benefited. Because as an engineer, whatever domain you are into it, my dear colleagues, you have to be a problem solver. Simple as that. That's the golden statement. If you feel you have the capability to have a problem solving capability, you can, you really love to have a critical thinking. You really love to solve some societal problem for it. Trust me, this is the right place where you can go for it. That's a different parameter, which field you have to go for it. That's a completely secondary thing, my dear friends. The primary thing is all about, do you love to have a problem solving capacity, or do you love for it, have a passion for it? And do you really love for the critical thinking? So that is the core importance for it whenever you are stepping into engineering field. With this, yes. We have a lot of students from 10th, 11th, 12th as well. So हम लोग conversation उर्दू और English mix में रखते तो better होगा इंशाल्लाह. Sorry. Yeah, I knew that point, but sorry for it. So like for example, like मेरा बोलने का मतलब ये था कि इंजीनियरिंग को आप ब्रांचेस से रिलेट मत कीजिए दोस्तों. सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हमें बहुत ख्वाहिश है, अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम दिखता है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भाई टेक्नोलॉजी हो या कुछ और वेज हो. दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट.
अगर हम वैसी अगर सोच रखते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी हमारी एक सोच होगी ना, ये एक पूरा बेस है आपका इंजीनियरिंग का। आप ये मत सोचिए कि ये ब्रांच करूं तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, ये ब्रांच करूं तो यहाँ पे पहुंचूंगा, बिकॉज इतने एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे आपके कजन्स में, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके दोस्तों में। देर आर लाइक मतलब कुछ लोग ने मतलब इलेक्ट्रिकल किया है ब्रांच में, बट सॉफ्टवेयर में उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने काफी अच्छा किया है। Either they are into abroad, either they are into India with some multinational good companies for it. कुछ लोग ने मतलब मैकेनिकल किया, still they are into some other domain. कुछ लोग ने ऑटोमोबाइल किया, still they are into some other domain. कुछ लोग ने कुछ इलेक्ट्रिकल किया, but they are into ऑटोमोबाइल domain. So it depends कि अपॉर्चुनिटीज क्या मिले हमें उस वक्त करंट सिचुएशन में, और आपका पैशन कैसे डेवलप होता है। So सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या है कि हम लोग प्रॉब्लम एक सॉल्विंग टेक्निक सीखे। वो 4 साल में वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइक कंपनीज हमें वही देखती है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आए, सॉल्विंग कैपेसिटी या पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या इसमें, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज लाइक ये कुछ डोमेन्स है हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, सिविल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सो ऑन। लाइक देयर आर वेरियस डोमेन्स फॉर इट, उसमें जो काफी लोग जानते भी होंगे, काफी लोग ने गूगल भी किया होगा। वैसा हम लोग कुछ अभी हम लोग ब्रांच वाइज बात नहीं करते हैं, बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच से रिलेट करते हैं। भाई कंप्यूटर जाओगे तो आप ये कर पाओगे, आप सिविल करोगे तो आप ये कर पाओगे, आप मैकेनिकल हो तो आप ये कर पाओगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो आप यही कर पाओगे, आप आईटी इंजीनियर हो तो आप यही कर पाओगे, आप ऑटोमोबाइल हो तो आप यही कर पाओगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या फील्ड्स ओपन होती है मार्केट में, कैसे कैसे जॉब ओपन होते हैं, उसकी हम बात करते हैं स्किल सेट में। हम लोग ब्रांच की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑलरेडी वैरायटीज है, हम लोग इसके बारे में लेटर डिस्कस करते हैं कि कैसा हम इसको प्रेफर करें सिलेक्ट करने में। बस लेट्स टॉक अबाउट कि भाई कैसे कैसे फील्ड है हमारे पास, यहाँ पे कैसे कैसे काम है हमारे पास एक ब्रॉडर वर्जन में। सो विद दैट ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक मेजर स्ट्रक्चर है जो हमें लगता है हमारी स्टडी के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ये सब फील्ड में जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग चालू करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बिकॉज हर एक मल्टीनेशनल कंपनी में दोस्तों, पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, उनके पास एक सेल होता है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ताकि उनके प्रोडक्ट को हम डे बाय डे इंप्रूव कैसा करें। एक होती है आपकी सेलिंग की टीम होती है, एक होता है जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट को, एक होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एक सो सेल होता है जो कि आपको रिसर्च करता रहे कंटिन्यूसली ताकि हम इसको इम्प्रोवाइज कैसा करें। बिकॉज आज की तारीख में आप भी जानते हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, आप भी जानते हैं कि आज आप परचेज करते हो मोबाइल फोन अगर 1 रुपए का, अगर 3 महीने बाद वही मोबाइल फोन 1 रुपए का नहीं मिलने वाला, आपको पता है वही सेम मोबाइल फोन आपको 70 पैसे का मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मार्केट में आ रही है, क्योंकि वो इतना मतलब टेक्नोलॉजी हर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आउटडेट हो रही है जो आप डेली यूज कर रहे हो। सो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको काफी आएगा। अभी आप बोलोगे कौन से ब्रांच से जाओगे, ये पर्टिकुलर डोमेन में आप कोई भी ब्रांच से जा सकते हो। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं इसमें हर ब्रांच जा सकता है इसमें, ठीक है। सो हम लोग वो ब्रांच हम लोग स्पेसिफिक है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी ब्रांच ले लो, बट ऑब्वियस आपकी चॉइस के हिसाब से होता है। बट अल्टीमेटली इफ यू आर गुड एट इट, आप अच्छे हो तो, बट ऑब्वियस ये जो भी डोमेन हम लोग बात कर रहे हैं ये हर ब्रांच वाले इसमें एंटर कर सकता है, ट्रस्ट में। ये सब सेगमेंट आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करो, आपको ये सब ओपन होता है आपके लिए। कंडीशन अप्लाई, आपको उसकी चीज की कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपका गुड हैंड्स ऑन होना चाहिए, आपके एकेडमिक्स थोड़े स्ट्रांग होना चाहिए आप जब इंजीनियरिंग करोगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड एनालिसिस एंड डिजाइन, टेस्टिंग है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंसल्टेंसी है एंड एकेडमिक्स है। सो इसको हर एक को एक एक चीज हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप कोई ब्रांच से कीजिए इंजीनियरिंग, आपको ये सब डोमेन आपको ओपन हो जाता है, एवरी डोमेन। आप सिविल बात कीजिए, मैकेनिकल बात कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बात कीजिए, ईएचसी बात कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बात कीजिए, आईटी हो, कंप्यूटर्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, एनी डोमेन, आप कोई भी डोमेन बात कीजिए, आपको हर डोमेन का कोई स्टूडेंट रहेगा वो ये कोई भी सेगमेंट में जा सकता है। सो विद दैट हम लोग अगर फर्स्ट एक बात करते हैं आपकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में, अगेन आप अगर बात करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर स्टूडेंट हो, अगेन वहां पे मैन्युफैक्चर आता है, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग आती है, आपका मोबाइल फोन है, आपके गेम्स है एंड सो ऑन, एनीथिंग यू पिक इट अप, यू हैव अ चिप, आपके पास चिप है तो आप बात करो मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो वहां पे अगेन डिजाइनिंग भी काम आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग के लोग भी काम आने वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी लोग काम आने वाले हैं, वहां पे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव के भी लोग काम आने वाले जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो हर तरीके से वो इन्वॉल्व है, ठीक है। सो वन ऑफ दिस सेगमेंट इज योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन, जहाँ पे
आप अपना करियर देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई यस यू आर वेरी कीन, आपको डिजाइनिंग बहुत पसंद है, आपने कुछ 11th 12th तक आपने डिजाइनिंग के कुछ कोर्सेज किए हैं, आपने डिजाइनिंग कुछ किया है, यू फील कि कैन गो फॉर इट, अगेन ये आपके लिए डोमेन ओपन हो जाता है। अगेन आप यहाँ पे सिविल करें, मैकेनिकल करें, एएचसी करें, हर डोमेन में अल्टीमेटली आपको सॉफ्टवेयर का भी काम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर का काम खाली आपको कंप्यूटर से आने वाला है, आईटी से आने वाला है, हर डोमेन आप करेंगे, बिकॉज हर डोमेन आज की तारीख में डिजिटल हो रहा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रहा है। कुछ कुछ आपके जो कैलकुलेशन है, कुछ कुछ जो डिजाइन है सॉफ्टवेयर पे होने वाला ही है। अगर आप सॉफ्टवेयर से अगर कंप्लीटली हेट करते हो तो वैसा अगर डिजाइनिंग में जाओगे तो नहीं चलने वाला। सो दैट इज व्हाट आपको आपकी चॉइसेस आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको सॉफ्टवेयर कितना पसंद है। अगर आपने काम नहीं किया तो अब ये छुट्टी है काफी, हम उसको कुछ ट्रायल एरर कर सकते हैं, हमें समझने आने वाला है कुछ, वो भी हमें एक मौका मिलता है कि हमें प्रैक्टिस करके अगर हमें अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा। बिकॉज काफी लोग का एक क्वेश्चन होता है कि अभी हमें मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में देखा था कि टेल अस कि हम कौन सा ब्रांच करें जिसमें हमको अब्रॉड में अच्छा मिले या इंडिया में अच्छा मिले। ट्रस्ट में आप ये क्वेश्चन किसी से पूछिए मत, करियर आपका है, आपको अपनी जी जान करके मेहनत करनी है, बराबर है। आप किससे अगर पूछोगे, अगर वो एक्सवाइजेड एज अ काउंसलर लाइक मी और कोई हमें बोल रहा है भाई नहीं ये कोर्स के लिए जाइए, भाई आप ये कोर्स के लिए जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो या आईटी हो या कंप्यूटर्स हो या सिविल हो, आप ये कोर्स कीजिए, वो आपको खाली 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा अगर जानता है, राइट, विद दैट हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो आपको एक राइट कोर्स आपको सजेस्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको देखना है कि भाई ये सब सेगमेंट्स में कैसे कैसे टाइप के हम काम कर सकते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। आज की तारीख में हर एक के हाथ में मोबाइल फोन आ गया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग द मोबाइल डेटा इन अ प्रॉपर वे। स्टार्ट लुकिंग एट कि आपको हर एक ब्रांच के कुछ कुछ वीडियोस देखिए ना, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं देख सकते आप, राइट। आप हर एक ब्रांच के वीडियोस देखिए कि कैसे कैसे यहाँ पे काम है, कैसे क्या टाइप के काम के प्रोफाइल है, यहाँ पे कैसे टाइप के लोग काम कर रहे हैं, क्या काम है। अगर मैं मैन्युफैक्चर में जाऊंगा तो वहां पे क्या क्या मेरा रोल रहता है, कितने एम्पल आपको ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस मिलेंगे। यू कैन हैव अ लुक एंड देन आप शॉर्टलिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल यू शॉर्टलिस्ट, क्या आप प्रेफरेंस बनाते हो, नंबर 1 मेरे को ये फील्ड चाहिए, नंबर 2 मेरा ये चॉइस है, नंबर 3 मेरा ये चॉइस है। देन यू कम टू अ काउंसलर, देन आपको काउंसलर्स काफी आपको एक ओपिनियन आपको ओपन करेंगे, इसके लिए ये प्लस पॉइंट है, ये आज की तरह के मार्केट में एक नेगेटिव पॉइंट चल रहा है, इसमें ये प्लस पॉइंट है, आज की तरह के मार्केट में ये नेगेटिव पॉइंट है, इसमें ये प्लस पॉइंट है, आज की तरह में ये नेगेटिव पॉइंट है। देन यू एंड योर पेरेंट्स हैव टू पिक इट अप कि व्हाट वुड बी मोर प्रेफरेबल फॉर यू। कंप्लीटली डोंट, आपके पूरे चॉइसेस किसी और के सामने कंप्लीटली ओपन अप मत कीजिए, दैट इज नॉट द राइट वे माय डियर फ्रेंड। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट होता है आपकी टेस्टिंग है, हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में सुनते हैं, हार्डवेयर टेस्टिंग होती है एंड सो ऑन। सो अभी आप टेस्टिंग बात करोगे तो आप सिविल में अगर बात करोगे तो वहां पे अगर सीमेंट कुछ बनता है तो अगेन उसमें भी एक टेस्टिंग यूनिट होती है। मैकेनिकल के कुछ प्रोडक्ट है उसमें भी एक टेस्टिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर आईटी के आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर उसमें सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी भी अलग टेस्टिंग होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में हो तो आपके हार्डवेयर की जो चिप है उसकी अलग टेस्टिंग होती है। तो इट इज ऑल अबाउट, आप ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रॉपर एक बड़े प्रॉपर डोमेन की बात कर रहा हूँ। इसमें आप कोई भी ब्रांच से करो तो ये डोमेन उसमें अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा आपको 110%। सो आपको ये जो ब्रीफ आपको मैं बता रहा हूँ तो इसमें अगर आप एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपके काम करने का तरीका, आप या आपके कजन से बात करते, दिस इज व्हाट आई फील कि मेरा, आपने मुझे तकरीबन फ्रॉम लास्ट 17 years यू हैव ऑब्जर्व मी व्हाट यू फील कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एंड सो ऑन। तो आपको लोग जो ऑब्जर्व करते हैं देन वी कैन टॉक, आप उनसे बात कर सकते हो, आप थोड़ी चीजें शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि मेरे लिए क्या क्या प्रेफरेबल है। तो मैंने जो आपको सर्कल बनाया था ये काफी आपको हेल्प होगा शॉर्टलिस्ट करने में, बिकॉज आप कोई ब्रांच जाए आप इसमें आप पुट अप कर सकते हो। आप टेस्टिंग अगर आपको पसंद है तो आप कोई ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको टेस्टिंग का वहां पे काम मिलना ही मिलना है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो ये पूरे सर्कल की आपको काफी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट होता है आपका एनालिसिस एंड डिजाइन। अगेन यू सेलेक्ट एनी डिजाइन, लाइक आप ऑटोमोबाइल में जाइए आप कार डिजाइन की बात कर सकते हैं, बराबर है। आप मैकेनिकल जाइए, आप कुछ प्रोडक्ट आप बनाते हो उसकी आप डिजाइन की बात कर सकते हो, राइट। अगेन एनालिसिस, आप फॉर एग्जांपल आप अगर सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्ट होता है, आप उसके एनालिसिस कर सकते हो, हाउ वेल द सॉफ्टवेयर इज, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे वो एक पेज से सेकंड पेज पे कैसे जाएगा एंड सो ऑन, लाइक ऑल द डिजाइनिंग भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से EHC के स्टूडेंट अगर आप बनते हो तो अगेन वहां पे आपकी चिप की डिजाइनिंग आती है, अगेन वहां पे आप चिप को भी एनालिसिस कर सकते हो। तो उसको सॉफ्टवेयर बेस में काफी सॉफ्टवेयर आते हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट होते हो तो भी आपको काफी सॉफ्टवेयर जिसमें आपको चिप को आप एनालिसिस कर सकते हो।
सो अगेन ये एक ब्रॉडर डोमेन है जिसमें आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है. सो दैट इज एन बिकॉज ये फील्ड, ये जो सेगमेंट में आनी ही आनी है, नहीं है ऐसा हो नहीं सकती. यू कैनॉट एक्सेप्ट, यू कैनॉट स्किप दिस काइंड ऑफ सेगमेंट. ये सेगमेंट को आप स्किप ही नहीं कर सकते. कम से कम कमिंग 10 years यू कैनॉट स्किप दिस. नेक्स्ट अगेन आप हम देखते हैं जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. someone who feels कि no even after doing engineering I feel कि चलो ठीक है, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आ गई है, मेरे पास क्रिटिकल थिंकिंग टेक्निक आ गई है, राइट. बट आई फील कि नहीं, मैं टेक्निकल, प्योर टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ. मैं टेक्निकल नॉलेज प्लस थोड़ा मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट कैसा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक चिप की कंपनी हम बात करते हैं, राइट. तो चिप की कंपनी में थोड़े बहुत हमें ये भी मालूमात हो कि भाई चिप के डिजाइनिंग की भी थोड़ी मालूमात हो. अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी मालूमात हो कि हमें कौन से वेंडर्स को उसको इंपोर्ट करना है या कौन से वेंडर से एक्सपोर्ट करना है एंड सो ऑन, कौन से वेंडर्स को हमें सेल करना है. तो दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट काइंड ऑफ हमें एक तजुर्बा आना चाहिए. हमें लोगों से बात करके, लोगों से उसको डील करने के लिए, ये सब चीजें हमें बहुत पसंद है. कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें ऑफिस टाइप अपने खुद के काम में, टीम में काम में ठीक है, दे आर वेरी गुड एट इट. बट कुछ लोगों से, अननोन लोग से प्रेजेंट करना है तो वहां पे उनको उतना वो लोग फ्री नहीं होता है, राइट. दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन दैट. तो हर एक का एक प्लस पॉइंट होता है. तो उनका एक प्लस पॉइंट होता है कि नहीं, वो लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों से बात कर, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं. सो इन दैट केस द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कुछ लोग ऐसे होते स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अब तक 11th-12 में कोई एनसीसी में पार्टिसिपेट करता है, कोई साइंस प्रोजेक्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एक लार्जर स्केल में, कोई अपने स्कूल में सीआर रह चुका है, कोई स्कूल में अपने मॉनिटर रह चुके हैं. उनको लीडरशिप स्किल्स है, उनको पता है लोगों से कैसे काम करा जाए ताकि लोग खुश भी रहे और उनको काम भी कैसा कराया जाए. तो समथिंग काइंड ऑफ वो प्लानिंग और मैनेजमेंट में वैसे बच्चे काफी फिट होते हैं. अगेन इट्स इमटेरियल. आप कोई भी फील्ड से कीजिए, आपको हर एक फील्ड अगर करेंगे आप इंजीनियरिंग, तो आपको ये फील्ड में काम करने का मौका मिलता है. सो दैट्स द पॉइंट. आगे हम लोग बढ़ते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हमने ऑलरेडी काफी कुछ देख चुके हैं. बिकॉज आज की तारीख में हर कंपनी जो अच्छी, काफी मल्टीनेशनल कंपनी, हर कंपनी में एक काफी सेगमेंट है. इनफैक्ट आप भी देख रहे हो कि इंडिया फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years में इंडिया ने भी काफी इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है. इंडिया में भी काफी इन्वेस्टमेंट आ गए हैं. काफी लोग स्टार्टअप्स में हो गया, काफी लोग रिसर्च में है, काफी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. बिकॉज उनको चाहते हैं कि भाई हर एक कंट्री का अगर एक प्रोग्रेस होगा तो प्रोग्रेस में एक सबसे एक बड़ा हाथ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हर नेशन के लिए, राइट. तो ये कभी जा नहीं सकता. अभी ये एक ऐसे बच्चे जो कोई भी चीज को उनको भाई ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा करे तो क्या होगा, ऐसा कुछ, ये इनको जो क्यूरियस बच्चे हैं वो काफी फिट होता है यहाँ पे. बिकॉज इसमें कैसा सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिलती है उनको कंटिन्यूसली, उनको बोलते हैं ना कंसिस्टेंट भी चाहिए, एकदम भाई बैक टू बैक काम करना चाहिए, उनको एकदम लगे रहना चाहिए. और उनको पता है कि एक वक्त लगेगा इसको बनने के लिए. बिकॉज कुछ लोग होते हैं काफी इम्पेशेंस होते हैं, राइट. उनको भाई ठीक है काम किए, उनको रिजल्ट चाहिए, तो वो एक अलग कैटेगरी के बच्चे, अलग उनको काम आएगा. इसमें कुछ है जो उनको भाई उनकी काफी कंसिस्टेंसी है, काफी सब्र है, काफी पेशेंस है. सो वैसे कुछ बच्चे अगर, बिकॉज यहाँ पे एक एटीट्यूड बहुत जरूरी है भाई, नेवर टू लूज वाला एटीट्यूड है. बिकॉज इसमें कैसा है, वो जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो उसको रिसर्च का नाम ही होता है री एंड सर्च, कीप रिसर्चिंग. तो दैट इज एटीट्यूड हमें बच्चे लोग में अगर हम लोग उसको जनरेट करें और उनमें ऑलरेडी है तो ये सब टाइप की फील उनके लिए काफी सक्सेसफुल होती है वैसा. नेक्स्ट इज योर एकेडमिक्स. अभी कुछ चीज ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है कि दे आर वेरी वोकल. वो बात करना, कोई चीज को उनको समझाना, आप देखते होंगे आपके स्कूल में, आपके जूनियर कॉलेज में कुछ लोगों को उनको बहुत पसंद है कि कोई चीज उन्होंने पढ़े और समझाना उनको बहुत पसंद आता है. दे आर वेरी गुड. मतलब उनको कोई भी चीज उनको अगर उन्होंने समझी है तो उसको इजी करके कैसे समझाया, कैसे छोटे छोटे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके कैसे समझाया गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ समझाने का तरीका, आई हैव सीन, मतलब एक स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ पढ़ाते वक्त, रेडिएशन सर्कमफ्रेंस पढ़ाते देखा हूँ. कैसा, उन्होंने एक रोबोट का टायर लिया है, रोबोट का टायर लेके उन्होंने क्या किया, रेडियस को मेजर किया. रेडियस को मेजर किए बच्चे लोगों को बताया, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ 9th and 10th की बात कर रहा हूँ मैं आपको. ऐसे बच्चे इतने क्यूरियस और इतना स्मार्ट होते हैं. और रेडियस को मेजर करने के बाद उन्होंने बोला भाई ठीक है, बच्चे लोग को उन्होंने अपने कलीग को बोला जो उनसे जूनियर थे 1-2 साल, कि अभी सर्कमफ्रेंस मेजर करो. तो सर्कमफ्रेंस सबको फॉर्मूला पता है, 2πr होता है, सबने कैलकुलेट किया. तो उनको चैलेंजेस दिया कि अभी उनको रेवोल्यूशन का कंसेप्ट समझाना था बच्चे लोग को, वो स्टूडेंट को. तो उन्होंने कैसे समझाया, उन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ना है तो बताओ कितने रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे. तो उन्होंने समझ लिया कि अगर 10 सेंटीमीटर का एक अगर सर्कमफ्रेंस है
तो कंप्लीट अगर सर्कल को पार करूं तो मुझे एक 10 सेंटीमीटर का है, अगर मुझे 100 सेंटीमीटर करना है तो मुझे कितने रेवोल्यूशन लगेंगे? आप आंसर दे सकते हो, राइट? सो दैट इज अ 10 रेवोल्यूशन. सो दैट इज अ सिंपल वे ऑफ इनोवेटिव. लाइक जो किसके पास वो कला होती है कि भाई कोई भी डिफिकल्ट को कैसे इजी पढ़ाए, तो वो ऐसे एकेडमिक्स में, रिसर्च में मास्टर्स कर सकते हैं बच्चे, आगे जाके अपने डॉक्टरेट कर सकते हैं, एकेडमिक बन सकते हैं, ताकि वो कुछ कॉलेजेस में अगर एज अ प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई जगह एज अ रिसर्च कंसल्टेंसी में एज अ बोलते हैं ना फ्रीलांसर जाके कुछ चीज वो पढ़ा सकते हैं, भले अपना खुद का रिसर्च करे, खुद की कंपनी भी चलाए, प्लस एज अ जाके कुछ लेक्चर्स भी दे. सो ये भी एक बहुत बड़ा डोमेन है, काफी लोग जहाँ पे आ रहे हैं. बिकॉज इसमें अगेन अगर आपको गवर्नमेंट का अगर एकेडमिशियन, अगर गवर्नमेंट के आपको गवर्नमेंट में आप अगर एंटर करते हो एज एकेडमिशियन, अगर एज अ प्रोफेसर करते, तो अगेन यू गेट अ वेरी गुड सैलरी फॉर इट. अगेन आपको गवर्नमेंट इनवाइट करती है, अगर आपके पास कुछ एक्सपर्टी आती है कुछ डोमेन की, आपको लगता है भाई ये गवर्नमेंट, लगता है आपको ये डोमेन की आपकी काफी एक्सपर्टी है रिसर्च में, तो आपको गवर्नमेंट आपको बुलाती है कि उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए, कंपनीज आपको इन्वाइट करती है. सो अगेन ये बहुत बड़ा डोमेन है एकेडमिक, इसको भी हम लोग इसको हम कम नहीं समझे. अगेन यू हैव अ वेरी गुड डोमेन इन दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट आपके जो हम लोग बात कर रहे थे, और जो सर्कल हम लोग बात कर रहे थे, ये पुट अप करने के लिए. नेक्स्ट इज योर कंसल्टेंसी. अब फ्रॉम 2017 जब से स्टार्टअप इंडिया चालू हो गया, ट्रस्ट मी, लोगों को इतना लगा नहीं था कि इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट होगा, बट आज की तारीख में लोगों ने, पहले कैसा होने का, सब लोग लैंड, गोल्ड, ज्वेलरीज में काफी लोग इन्वेस्ट करने के, आज की तारीख में लोगों को लगता है कि स्टार्टअप्स की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो वन इज लाइक कंसल्टेंसी. आपने अगर इंजीनियरिंग कर लिया, आपको लगता है कि आपके पास एक स्किल सेट है, तो आप काफी स्टार्टअप्स को एज ए कंसल्ट कर सकते हो. आप उनको ये डोमेन में आप उनको एज अ उनके एडवाइजर बन सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो ये कैसा चीज करना, तो उसको एज अ कंसल्टेंसी में हम लोग काउंट करते हैं. तो अगेन यू गेट अ वेरी गुड पे फॉर इट, बिकॉज आज की तारीख में जो स्टार्टअप इंडिया ने जो जोर पकड़ा है, ट्रस्ट मी, देयर आर वेरियस स्टार्टअप कंपनीज कमिंग आउट. ये जो पहले तकरीबन ऑलमोस्ट 2014 से पहले उतना क्रेज नहीं था, बट आज की तारीख में काफी लोग आ रहे हैं. नो डाउट फेलियर्स है, वो हर फील्ड में होंगे, काफी फेलियर्स नहीं होने वाले आपके, बट अनलेस एंड इफ यू डोंट ट्राई, उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है. लाइक जैकमा, जो वन ऑफ द फाउंडर, अलीबाबा के जो फाउंडर है, सबको पता है अलीबाबा कितना बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है, बराबर. अगेन लाइक ही वाज रिजेक्टेड बाय 31 इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया था. इवन लाइक केएफसी में, अगेन फॉर अ केएफसी एम्प्लॉयशिप, अगेन वहां पे केएफसी में जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, वहां पे भी उनको इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया था. बट सी हाउ टाइम फ्लाइज, राइट? कहाँ पे है वो. सो देयर आर वेरियस फेलियर्स फॉर इट. हर एक के फेलियर्स होते हैं, हर एक के सक्सेस होते हैं, बट अगेन ट्रस्ट मी, कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा डोमेन है. हर एक इंजीनियर अगर सोचता है कि भाई काम के लिए सोचता है, अगेन हमें ये भी ऑप्शन ओपन करना चाहिए. भले हम अगर स्टार्टअप चालू नहीं करते हैं, और जो ऑलरेडी स्टार्टअप है, हम उनको क्यों नहीं कंसल्ट करें? हम इतनी स्किल सेट क्यों नहीं, इंजीनियरिंग करते करते हम इतनी स्किल सेट हमारे पास क्यों नहीं ला पाए, ताकि कोई हम स्टार्टअप को हम कंसल्ट कर सके. तो एज अ फ्रीलांसर है, आप एक टाइम पे तकरीबन 3-4 कंपनी को भी कंसल्ट कर सकते हैं, एंड यू गेट अ गुड पे. सो दैट इज एन एडवांटेज. तो ये सब चीज के बारे में हम लोग सोचते नहीं. हम लोग लाइक हमारे पास एक कॉमन डोमेन है, ये करे, इसमें ये जॉब ही है, यही सेगमेंट, ऐसा नहीं है. दिस इज द कंप्लीट ओवरऑल अलग अलग सेगमेंट है, जिसमें आप कोई ब्रांच कीजिए, आपको ये सब सेगमेंट में आप एंटर कर सकते हैं. कंडीशन यही है कि आपको उसका हुनर होना चाहिए, आपको उसके स्किल सेट होना चाहिए. अगर उतनी रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है, उतनी रिक्वायर्ड आपका हुनर नहीं है, आप कैसे गाइड करेंगे उनको, राइट? और लोग आपसे क्यों कनेक्ट होना पसंद करेंगे? लोग कनेक्ट होना तभी पसंद करेंगे जब उनको लगता है यस, इनके पास जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, जिससे हमें बहुत इफेक्ट, हमें फर्क पड़ेगा हमारी कंपनी में. हाँ, ये कंपनी में, हमारी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें मोर देन लाइक जॉब हमें मिले नहीं मिले, मोर देन हम लोग कंपनी स्टार्ट कर पाए नहीं कर पाए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग 4 साल में हम लोग कितनी स्किल सेट सीखना चाहिए. तो सीखने की वो, बिकॉज दैट इज वो जो 4 साल है, इसमें सबसे बेस्ट टाइम है कि जितने भी हमें फेलियर मिले, जो भी काम करे, जो भी प्रोजेक्ट करे, हमें फेलियर्स इसमें ही मिले. बिकॉज व्हेन यू कम टू द मार्केट, तो एटलीस्ट आपके फेलियर्स के चांस काफी कम हो जाएंगे, बिकॉज आप वो फेलियर से इतना एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो यहाँ पे वो काफी आपको हेल्प हो जाएगी. बिकॉज इंजीनियरिंग में अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, तो आप कोई भी कॉलेज से कीजिए, आप कोई भी डिपार्टमेंट से कीजिए, उसका कुछ सेंस ही नहीं बनेगा. बिकॉज ये प्रोजेक्ट ही ऐसी चीज है जो आपको हर चीज सिखाएगी. आपको टीम वर्क सिखाएगा, आपको फेलियर सिखाएगा, आपको चैलेंजेस सिखाएगा, आपको प्रॉब्लम थिंकिंग कैपेबिलिटी सिखाएगा. आप कोई भी डिपार्टमेंट, आप कोई भी ब्रांच से कीजिए, आपको यू मेक श्योर कि अभी से आप हर साल प्रोजेक्ट्स करना बहुत जरूरी है.
जो आप 12th में साइंस में नहीं आप प्रोजेक्ट्स करते हो, कंपटीशन जब आता है जब प्रोजेक्ट बनाते हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसा हमें आपको पता है पूरे इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, 6 महीने का एक सेमेस्टर्स पैटर्न बोलते हैं, तो हमारे पास टोटल 8 सेमेस्टर्स पैटर्न होते हैं। तो अगर हर सेमेस्टर में अगर हम लोगों ने छोटे छोटे धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाना चालू किए, अब जो नया सिलेबस आ गया है इंजीनियरिंग का, इसमें काफी कुछ प्रोजेक्ट्स काफी कंपलसरी किया गया है, जो प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में नहीं था, ये नए सिलेबस में उन्होंने कंपलसरी किया, बिकॉज अभी पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस है जो है आपको एकदम आउटकम बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, ओबी बोलते हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन जिसको कहा जाता है, कि देयर हैज टू बी एन आउटकम। आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो उसका आउटकम क्या है, तो उसका आउटकम जज कैसे कर सकते हैं, आपके मार्क्स से नहीं, आपके प्रोजेक्ट से जज किया जाता है, बिकॉज प्रोजेक्ट इज द ओनली वे जो कि आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हो मेरे दोस्तों। सो दिस इज व्हाट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आता है। अभी कुछ लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव में लोग सोचते हैं कि नहीं दिस इज व्हाट हमें एमबीए करके ही मिलता है। यस, एमबीए एक तरीका होता है, एंड आप ऑब्जर्व करोगे फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे अगर एमबीए का एग्जाम बैठते हैं तो लाइक मोर देन लाइक ऑलमोस्ट 73-74% लाइक बच्चे आपके इंजीनियर्स होते हैं, कुछ आपके बीएससी होते हैं, कुछ आपके कॉमर्स के बच्चे होते हैं, सो ऑन। बिकॉज जो एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है इट इज कंप्लीटली ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत चैलेंजिंग वाला होता है। और यहाँ पे इंजीनियर्स में आपको जो 4 साल में जो आपको सिखाया जाता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग आपको होती है, जो चैलेंजेस आपको आते हैं, तो वहां पे आपका प्रिपरेशन वो काफी हेल्प होती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो एटीट्यूड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिलेबस एमबीए का यहाँ पे सिखाया जाता है एंट्रेंस का, बट वो एटीट्यूड आपको सिखाया जाता है। डिपेंड करता है आपके कैसे मेंटर्स हो, कैसा कॉलेज है, कहाँ पे डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया, पर वो एटीट्यूड आपको सिखाता है। सो ये बहुत जरूरी है। सो अगेन विद दैट, अगर आपने एमबीए किया और विदाउट भी एमबीए आपने अगर शुरुआत में जॉब चालू किया है, आपको लगता है कि यस यू हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, आपने आपके डैड के बिजनेस को देखा है, आपके अपने कजन्स के बिजनेस को देखा है, आपने कुछ उनके बिजनेस में इन्वॉल्व थे, या आपके उनके ऑफिसेस के काम को देखा है, एंड सो ऑन। दैट इज द ओनली वे, मतलब आप सीखते हो उनके काम को देख के कि आपको पता है। बिकॉज कैसा होता है बोलते ना, एक अच्छा फ्रेज था व्हेन एक मैं लाइक ऑलमोस्ट 3 years बैक मैं आईडी दिल्ली गया था कुछ एक कॉन्फ्रेंस के लिए, आई वाज वहां पे इनवाइट था मैं। वहां पे एक आईडी दिल्ली के जो डायरेक्टर थे उन्हें बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि व्हेन वो जब जापान गए थे तो वहां पे जापानीज के प्रोफेसर ने एक अच्छी बात कही उनको। बोले सर अगर एक जापानीज को और एक इंडियंस को खड़ा रखा जाए तो एक इंडियन लाइक अगर सिंगल इंडियन 5 जापानीज के बराबर काम करता है। सो लाइक यू गाइज आर सो हार्ड वर्किंग वैसा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी बोलते हैं, अगर 5 जापानीज को, अगर आपने 5 इंडियंस को, फॉरगेट अबाउट 5 जापानीज, 5 इंडियंस को जमा कर दिया, ठीक है, तो वो 5 इंडियंस का काम अगर आपने देखा और आपने एक जापानीज का काम देखा, तो हमारा एक जापानीज आपके 5 इंडियंस से 10 टाइम्स ज्यादा काम कर सकता है। आपके 5 इंडियंस का अगर काम एक साथ मिला है तो हमारा एक जापानीज 10 टाइम्स आपके 5 इंडियंस के जो काम किया उससे काम कर सकता है। वाई? बिकॉज देयर आर पॉइंट कि भाई ये पांचों इंडियंस एक टाइम पे एक सोच पे काम नहीं कर पाएंगे आपके। दिस इज वन ऑफ द हर्डल व्हाट ही सेड, वो उनका ओपिनियन था। देखा आपने कितना डिफरेंस था। एक एक को खड़ा रखा, सिंगल काम देखा तो वी वर डूइंग वेरी गुड। बट जब हम लोग बात करें क्राउड को अलग अलग बोलते हैं ना, मेंटालिटी के लोगों को एक साथ हम लोग लेके आते हैं और हम लोग उनसे काम कराना चाहते हैं, तो वो एक स्किल सेट चाहिए, सबकी बस की बात नहीं आती है। सो दैट इज वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स इज रियली इंपॉर्टेंट, ताकि वो समझ सके उनकी टीम मेंबर्स कैसे लोग हैं, कैसा किसका कोई प्लस पॉइंट है। अभी ये कैसे आएगा जब फिर एग्जाम आप जब इंजीनियरिंग करते हो, आप कोई भी ब्रांच से करते हो, मैं कोई भी ब्रांच की तारीफ करने के लिए आज नहीं आया हूँ। बिकॉज देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का हूँ, अगर मैं 20 मिनट ये बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, इसका मतलब मैं आपके माइंड पे थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा हूँ ये ब्रांच के लिए, तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू लाइक, मैं बहुत ओपनली बात करना, मैं आपके लिए बात करना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद इररिस्पेक्टिव आप कोई भी ब्रांच करो तो कैसे कैसे डोमेन आपके पास ओपन होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम हमें वो सोचना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि स्कोप नहीं है, स्कोप है, बट स्कोप उसी के लिए जो अच्छा है। ही हैव टू बी गुड। हमें हाथ पैर मारना बहुत जरूरी है हर फील्ड में। आज के बच्चे लोगों को, कुछ लोगों को वो एटीट्यूड नहीं है हाथ पैर मारने का, तो हमें वो सिखाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, राइट। सो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव इज वन ऑफ द थिंग जो कि हमें, जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, हमें प्रोजेक्ट जब भी करोगे इंजीनियरिंग में, वो हमेशा ग्रुप में ही होने वाला है। वो आपके फर्स्ट ईयर से जो प्रोजेक्ट करोगे, आप जब फाइनल ईयर तक जाओगे, वो हर प्रोजेक्ट आपका ग्रुप में होने वाला है। तो आपका जब ग्रुप में करते हो तो आपका टीम वर्क हो जाता है, आपकी लीडरशिप स्किल्स हो जाती है,
आप कैसे 4 अलग अलग लोगों कैसे कैसे मिलके काम करते हो, कैसे टास्क कंप्लीट करते हो, कैसे अगर आप ग्रुप लीडर बनते हो उनका तो आप कैसे काम कराते हो और आपका खुद का भी काम किस तरीके से करते हो, तो ये सब स्किल सेट आप सीखते हो। देन यू रियलाइज की वेर यू आर गुड एट इट। आप अच्छे हो, रिसर्च में अच्छे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हो, आप प्लानिंग में अच्छे हो, आप एज अ कंसल्टेंट आप अच्छे रहोगे, आप डिजाइन में अच्छे रहोगे एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट ओनली हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप जब काम करना चालू करोगे, आप अलग अलग वेरियस एक्सपेक्ट्स देखोगे, देन आप एक कंक्लूजन पे आना चालू करोगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अर्ली व्हेन यू फॉर दिस टू डिसाइड। Again, like which I say, a engineering student plus a correct learning attitude, which I feel कि this is really really important। हम एक बार एटीट्यूड सीख गए, देखो हमारे पास कैसा है, आप कितने भी ना कुछ कुछ जो एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहा जाता है हर कंपनी में, जो कि रिक्रूटमेंट लेते हैं, लोग को हायर करते हैं, पहले टेक्निकल राउंड होता है, फिर उसके बाद आपका एक एचआर राउंड होता है कंपनीज में, जिसको हम लोग बोलते हैं एचआर राउंड कहते हैं। तो वहां पे जो एचआर राउंड में बेसिकली वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहां पे एटीट्यूड देखा जाता है, क्योंकि उनको टैलेंटेड लोग चाहिए बट एट अ वेरी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर टैलेंटेड है एंड विद हैविंग अ वेरी बैड एटीट्यूड, इसका मतलब वो अगर टैलेंटेड को एक खराब एटीट्यूड के बंदे को अगर वो अपनी कंपनी में डाल दे तो बाकी के जो 10 अच्छे उनको भी बिगाड़ देंगे। सो दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट कि हमें अपना एटीट्यूड हमें बहुत पॉजिटिव बनाना पड़ेगा थ्रू आउट 4 साल इंजीनियरिंग में, ताकि भले फेलियर्स हो, लेट्स गो फॉर इट। जितना भी हम उसको काम करे, उसको अगर आउटपुट नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, लेट्स री गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज अ 4 years, वो हमें सीखने के लिए ही है, वो ट्रायल एंड मेथड हमें करना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज योर ओबी, जो मैंने ऑलरेडी आपसे मैंने डिस्कस किया, दैट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन। बिकॉज अभी इंजीनियरिंग में जो भी सिलेबस बन रहा है, इट इज ऑल लाइक प्रोजेक्ट हमेशा इंक्लूड हो रहा है। इनफैक्ट थ्योरी का थोड़ा कंटेंट कम कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ आवर्स थ्योरी का थोड़ा कम किया जा रहा है, और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन काफी बढ़ाया जा रहा है, जो रिवाइज सिलेबस हो रहा है कंटिन्यूअसली। So this is all about this thing. So that is what I want to say about it. With this, I'll be taking a few questions. मैंने already काफी आपका almost मैंने जैसा मैंने कहा था 30 minutes, हमने almost 29 minutes में complete कर दिया है। There are one of the most important thing क्या होता है मेरे दोस्तों की, आपको अगर आपने ब्रांच आपका डिसाइड कर लिया, आपने कॉलेजेस का आपने माइंड में पुट अप कर लिया है, सेकंड आपका सबसे मेन चैलेंजिंग बात क्या होती है आपके इंजीनियरिंग में, आपका आता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। बिकॉज डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप 10th के बाद डिप्लोमा कीजिए या 12th के बाद आप डिग्री में बात कीजिए, दोनों में कीजिए, दोनों में आपका जो भी आपका एडमिशन है वो कंप्लीटली आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। काफी पेरेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, तो उसमें एएमपी ने काफी कुछ लोगों से कोलैबोरेट किया है। एएमपी ने अपनी टीम बनाई है यहाँ पे, जो आपको डिप्लोमा की कंप्लीट काउंसलिंग में आपको हेल्प करेगा। आई नो कि 1 घंटा एक बहुत कम टाइम है, मैं इसलिए कोई भी ब्रांच के बारे में मैं आपको उनकी तारीफ करने के लिए यहाँ पे नहीं हूं, मैंने आपको एक ओवरव्यू एक देना चाहता था। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत मैसेज यहाँ से वहां पे पहुंचा होगा, ठीक है। अगर आपको उसके डिटेल ब्रांच में जानकारी चाहिए, उसमें हमने कंप्लीटली एएमपी ने टीम बनाई है, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम बनाई है। ये फॉलोइंग प्रोफेसर जो ऑलरेडी ये ब्रांच में पढ़ाते हैं, आप इनके नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप रेफरेंस एएमपी का और मेरा रेफरेंस लीजिए प्लीज, आपको ये जरूर हेल्प करेंगे। फिर भी आपको कुछ भी डिफिकल्टी आई तो एज एन एएमपी आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एएमपी, मैं आपको जरूर उनसे कनेक्ट करूंगा। आप प्लीज डायरेक्टली उनसे ही बात कर सकते हैं। जो भी पेरेंट, जो भी स्टूडेंट वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, अगर आप स्टिल कंफ्यूज है, आप ब्रांच डिसाइड नहीं कर पाए, तो आप सबसे बात कीजिए ना, सबसे ओपिनियन लीजिए, सबसे समझिए बात क्या है क्या नहीं है। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या क्या डोमेन्स ऑफ काम करने का मौका मिल सकता है हमें आफ्टर इंजीनियरिंग। जो एक ब्रॉड डोमेन था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल रियली हेल्प यू दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस समझना है, उसकी भी हमने एक टीम बनाई है, ओके। बिकॉज लास्ट ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस था, इस साल का जरूरी को कंप्लीट सेम हो, हल्का मॉडिफिकेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट ऑलमोस्ट इट विल बी सेम। ऑलमोस्ट क्या स्ट्रक्चर होता है, आपको अगर डिप्लोमा के ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस भी समझना है, एज कोई पेरेंट को समझना है या स्टूडेंट को समझना है, उसकी भी हमने एक टीम बनाई है। यू कैन कॉन्टैक्ट प्रोफेसर फरहान, ये उनका नंबर है। आप एएमपी का रेफरेंस और मेरा रेफरेंस वहां पे लीजिए, आप वहां पे वो आपको डिटेल में आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया जाएगा आपको कि कैसा प्रोसेस होता है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन पहले से रेडी रखना पड़ेगा, भले रिजल्ट आना बचा, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हम पहले से रेडी रखें ताकि आपको एंड में तकलीफ ना आए। अब तक हमने जो भी बात की, डिप्लोमा की बात की, आफ्टर 10th अगर कुछ स्टूडेंट करना चाहते हो, यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट है जो 12th अगर पास हो गए हैं या जो एमएससीटी जो देना चाहते हैं आफ्टर 12th के लिए, उनकी भी अलग से टीम बनाई गई है
जो डिग्री के लिए जो एएमपी काउंसलिंग टीम बनाई गई डिग्री सेक्शन के लिए, तो सिविल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल, ये सब की कंप्लीट टीम बनाई गई है। आपको कुछ भी अगर ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या टाइप का सब्जेक्ट है, क्या टाइप के करिकुलम है यहाँ पे, और डिटेल में आप इनसे बात कर सकते हैं। अगेन आप एएमपी का रेफरेंस लीजिए, मेरा रेफरेंस लीजिए, जरूर आपको ये एंटरटेन करेंगे, दे विल हेल्प यू आउट। प्लीज खाली आप और टाइम पे कॉल मत कीजिए, एक बड़ी सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप उनको मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6 के बीच में कॉल करेंगे, ट्रस्ट मी दे विल श्योरली हेल्प यू आउट। ओके, वो खास एएमपी की काउंसलिंग टीम के लिए ये टीम बनाई गई है। आप जितने भी अटेंडीज हैं प्लीज आप उसका फायदा उठाइए। अगेन डिग्री के जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस होता है, अगेन बिकॉज उसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक ऐसा है, जब तक आप ऑनलाइन प्रोसेस समझोगे नहीं तो आप सही कॉलेजेस, सही स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म पुट अप करना आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो वो बहुत जरूरी है। आपके मार्क्स क्या है, उसके हिसाब से आपको कैसे लिस्ट बनाना चाहिए, आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे दी जाएगी। ये एएमपी के लिए खास डिग्री की एडमिशन प्रोसेस की टीम बनाई गई है। प्रोफेसर बंदे नवाज, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम पर्सनली। खासकर आपको एडमिशन अगर प्रोसेस जानना है कंप्लीट कैसा होता है, क्या क्या चीज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग पहले से रेडी रखे आफ्टर 12th के लिए, तो आपको ये काफी गाइड करेंगे ताकि एंड टाइम पे आपको हसल नहीं हो। बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि हमें इस करंट सिचुएशन कैसी है। जब ये चालू होगा कुछ हमें तकलीफ न हो, हलचल नहीं हो, थोड़ा सुकून से काम हो, तो यू कैन रियली कॉन्टैक्ट हिम। सो दिस इज ऑल अबाउट ये पूरी कंप्लीट ऑलमोस्ट 12 लोग की टीम बनाई गई है, खास आप लोग के लिए है एएमपी ने, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल ब्रांच वाइज भी आपको कुछ आपको डिस्कशन करना है, या आपको चारों ब्रांच से बात करनी है, आप चारों ब्रांच से ही बात कर सकते हैं, कुछ भी आपको कंडीशन नहीं, आप फुल फ्रीडम है आपको, ताकि आपको और चीजें और डिटेल में समझे। सो विद दिस आई थिंक ये आज का मेन एजेंडा था, आपको ओवरव्यू बताने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या हमने टीम बनाई है, मैंने और हमने एमपी से मिलके, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। तो इसके लिए मैं और डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ कि भाई एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, कैसा और डिटेल, बिकॉज वो अगेन बहुत इंटेंस है कि कैसे फ्लो होता है। बट एक छोटी राय देना चाहूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 12th की बात करूँ, डिग्री के लिए बात करूँ, जब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो ट्रस्ट मी ऑनलाइन में हमको 300 ऑप्शन तक गवर्नमेंट ने आपको ओपन किए हैं कि आप 300 कॉलेज का भी नाम लिख सकते हो। तो उसमें आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ एक छोटा सा समझाने के लिए, वेरी शॉर्ट 2 मिनट में, ताकि मैं बात खत्म करता हूँ हमारी। एग्जाम्पल आपने 3 ब्रांच शॉर्टलिस्ट कर दिया, ओके, 3 ब्रांच जो भी हो, प्लीज मैं अभी 2 ब्रांच का नाम लूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं समझना, मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ, जैसे रैंडमली नाम ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिया मैकेनिकल ले लिया, सिविल ले लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ले लिया, ठीक है। आपने 3 ब्रांच फाइनल करिए कि भाई मेरा ये प्रेफरेंस ये है, ठीक है। तो आप जहां पे भी रहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना, देखो आपको कॉलेज आप कॉलेज में हल्का कॉम्प्रोमाइज करोगे तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, बट आप देखना कि आपका ट्रैवलिंग टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंजीनियरिंग में, ठीक है। कॉलेज में ज्यादा भी नहीं, बट एक स्लाइटली, बट आपका अगर से ट्रैवलिंग टाइम, अगर आपका दिन का ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटा बचता है, तो महीने के कितने घंटे बचते हैं, 6 महीने के कितने घंटे बचते हैं, साल भर के कितने घंटे बचेंगे, 4 साल के कितने घंटे बचेंगे, तो बहुत फर्क पड़ता है। ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आपने, बट ऑब्वियस जो बेहतर कॉलेज है आपने वो जाना चाहिए। तो कॉलेज में आप सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है, आपको कोई भी कॉलेज आप लिखते हो लिस्ट में, समझो टॉप 5 कॉलेज के जो नाम लिखते हो, प्लीज आप उसको जाके आप देख के आइए कॉलेज। देयर आर वेरियस पीपल, आप लोग फॉर्म भरते हो, आप कॉलेज को देखते भी नहीं हो कि आपका बच्चा या आप कहाँ अपनी जिंदगी के 4 साल देने वाले हो। तो बड़ी सिंसियर रिक्वेस्ट होगी जब भी ये, बट ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन कैसा ओपन हो, कैसा हो, क्या सिचुएशन आए, बट जैसा भी मौका मिले आपको, अगर मौका मिले तो प्लीज चारों के आपके जो एटलीस्ट टॉप 5 आप जो नाम लिखोगे, या टॉप 10 आप जो, आपको डिपेंड करता है आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, प्लीज आप जाके एक बार देख के आइए कॉलेज को, बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो किसी और से सुनना, ऑनलाइन देखना और जाके देखना, उसमें बहुत फर्क होता है। आप जब जाते हो, लोगों से मिलते हो, फैकल्टी से मिलते हो, उनकी लैब्स देखते हो, आपको एक्चुअल समझेगा कि ये कॉलेज कितना ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे उनके पास बच्चे सीख रहे हैं, क्या एडवांटेज है अगर हमारा बच्चा यहाँ पे आए। और एज ए स्टूडेंट आपको भी समझेगा कि मेरे को ये एनवायरनमेंट कितना सूट करेगा, मुझे क्या क्या चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज के अलावा मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है कि नहीं होता है, मुझे ये भी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज होती है ताकि मैं पढ़ाई भी सीख लूं, ये भी मुझे साथ में चाहिए, एंड सो ऑन। देयर आर वेरियस थिंग्स जो आपको एज अ स्टूडेंट चाहिए होगा ताकि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट हो।
तो प्लीज दैट्स अ सिंपल सजेशन फॉर यू, वो आपको प्लीज करना जरूरी है. अगेन व्हेन यू शॉर्टलिस्ट द 3 ब्रांचेस, मेक श्योर कि आप उसके आपके डिस्टेंस के हिसाब से आपकी लिस्ट बनाएं. अगेन डिस्टेंस प्लस कॉलेज की क्या कॉलेज आप राउंड मारने का आपको जो फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से आप रैंकिंग बना के आप उसको ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं एंड सो ऑन. सो वंस एक बार प्रोसेस चालू होगा देन वी कैन हैव अनदर सेशन इन मोर इन डिटेल कि कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म कैसा भर सकते हैं हम लोग. बट स्टिल फॉर टाइम बीइंग मैंने ऑलरेडी हमारी जो टीम है उनका ऑलरेडी आपको नाम नंबर्स एवरीथिंग दिया गया है. ये शायद से पीपीटी भी आपसे शेयर की जाएगी एएमपी के बिहाफ पे. तो पूरी एएमपी की टीम आपके सपोर्ट के लिए है. आपको कुछ भी डिफिकल्टी रहेगी आप उनसे कॉल कर सकते हैं. अगेन इफ टाइम परमिट्स लेटर ऑन जब भी ऑनलाइन पोर्टल चालू होगा हम ऑलरेडी एक सेक्शन आपके लिए रखेंगे ताकि ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, डिप्लोमा का भी और डिग्री का भी. सो दिस इज माय नंबर एंड proud to be an AMP member. So I just hand over to the team of AMP. आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं आंसर कर सकूं तो I'll be very happy for it. Thank you. Thank you so much, Abha bhai. It was really a nice session. I request Asma ma'am to take over the Q&A session. We've got around 55 questions which has been raised. So Asma ma'am will start asking the question that has been raised and you can address to them, inshallah. Sure, sir. The first question, which stream is best after BTech in food Asma ma'am, technology? आपकी आवाज बहुत slow आ रही है. Which stream is best after BTech in food technology? First thing, BTech in Food technology. food technology. I think Yeah. Before doing a master's, what a practical suggestion, what I give to that's completely my opinion. Whoever have asked this question, start working into a food technology before going to a master's, because again you will be having a different segment of master's in after food technology. So at least work in an industry for food technology for a year or two. Then you'll come to know your expertise for it. Either you would like to venture into administrative in food technology, either you would like to venture into आप उसके रिसर्च डोमेन में काम करना पसंद करोगे या तो उसके प्रोसेसिंग यूनिट में काम करना पसंद करोगे. तो जब तक आप काम नहीं करोगे तो एक मास्टर्स का डिसीजन इमीडिएटली नहीं लो तो ये अच्छा है. दैट इज माय ओपिनियन आपके लिए. So I'm doing automobile engineering diploma. What should I do next? You have options open for, again आपके पास ऑटोमोबाइल भी ऑप्शन ओपन है, अगेन मैकेनिकल भी है. बट आई प्रेफर कि अगर आपने ऑटोमोबाइल से किया है तो रिक्वेस्ट है अगर आप डिग्री भी ऑटोमोबाइल से करोगे, बिकॉज ऑटोमोबाइल का सेगमेंट डिजाइन सेगमेंट काफी प्रोडक्ट तक है. Is there scope for marine engineering in India? Marine engineering, there are few different colleges like BP Marine करके जो पनवेल and खारगर में है, and there are institute in Lonavala which is really good for marine technologies. Okay, so you can really refer to that institute and they have a very good scope, but condition apply कि you have to really like compromise on your social life, because over there वहाँ पे duration के साथ 8+4 का पैटर्न होता है. To what of my best knowledge, what I have having it, 8 months on board and 4 months आपको ऑफ रहता है. So that is a pattern आपको वहाँ पे रहना. तो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कितना पसंद है. Scope the but obvious है, condition apply, you are good at it. Is the next question, can we pursue designing in aeronautics after completing aeronautics engineering? Aeronautics, I don't have a very good expertise for it. Sorry, I cannot answer this question. So I don't want to answer in which I don't have an expertise for it. Sorry for it. What are my chances of getting into MIT in USA if I crack IIT? IIT and MIT, it doesn't have any relation for it, number one. Number two, over there, you have to go with the GRE score and TOEFL score. Okay. IIT would be an added advantage because when you draft your like statement of purpose, it will really help you, because again, with the help of GRE as well as your statement of purpose, both the things will really help you out getting over there. But only IIT is not the solution. You have to also score really good into GRE as well. What is the difference between BTech and BCA? BSc? BTech and BCA. Difference. BCA. Yeah. Okay. BTech, when you talk about BTech and B is almost same because it is all about the core engineering. BCA is completely for a computer application. For example, you can almost relate BTech or B computer IT with BCA almost. But again, when you talk about BTech and B, it is a little more intense compared to BCA.
What is the scope of IoT in artificial intelligence in the near future? Can you specify where can we learn these specific skills? Uh, you'd be really happy to know about it. Ki Mumbai University have started also graduation courses in B in IoT, B in AI and ML, B in data science. So you have a whole complete graduation over there, because this is what complete the next 5 years. It is the next booming IoT, AI, ML. It is, if you want to go for it, it is amazing. And for time being, since you have a very good time period, आपके पास काफी अच्छा वक्त है अभी, आप ऑनलाइन उसके वीडियो सीख सकते हो. जैसे ऑनलाइन कोर्सेज है यूडेमी करके और कोर्सेरा करके, ये दोनों प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको आईओटी के एक बेसिक कोर्स आफ्टर 12th ऑल्सो आप है तो भी आपको समझेगा. काफी बेसिक कोर्स है आईओटी पे और एआईएमएल पे आप कर सकते हो. डोंट गो फॉर एआईएमएल इनिशियली, बट आप आईओटी पे जा सकते हो, कोर्सेरा एंड यूडेमी. How can we become an aircraft engineer in aviation field? What subject can we take after HSC? Please tell about this. For aircraft and everything, I'll make sure I'll give a connect to AMP, to one of my colleague who is into this, because I don't have any expertise with aeronauticals. So sorry for that. I don't want to comment on it. Robotics engineering is a part of which domain? Robotics, it is part of robotics could be in a part of mechanical, as well as electronics, as well as EHCC, as well as computers. You break down, because the complete robotics, you need different kind of skill set. You need the structure for a mechanical. You need the chip, that is electronics and telecommunication. You need the programming. For that you require a computer and IT. So you require people from different domains. What is the future for chemical engineering? Chemical engineering, there are like I am being connected to a group of chemical engineers who are into oil and gas in Saudi. So again, it depends on the market situation. The people who are already gone to like 20 years back, so they are well established. But again, like this is something like it will grow. It has to grow. So it completely depends on the market trade and tradition. At this moment, the market is completely down for that. Okay, please advise difference in deemed to be university, deemed university and the regular university, that is Mumbai University. Deemed is something like they have the complete authority for it. For example, I can take an example of MIT. So they have the complete responsibility of making the syllabus, taking the examination, so that there is no upper body to it. Again, when you go to a Mumbai University, there are colleges which are affiliated to Mumbai University. That's the basic difference. Nothing major difference in education or something. It completely depends upon the faculty whom you guys will be attending the lectures for it. Simple as that. Can you explain about environmental engineering and water resource engineering? That is one of the branches for civil engineering. So civil is something, it includes both the categories. But if you do a civil engineering, you can go for a master's in environmental, as well you can go for a master's in water engineering also. Okay. Right now I'm doing biomedical engineering. I heard that its theoretical part is completely different from practical life. Is it okay to score average marks in engineering and focus more on practical skills and projects? Yes, it could be, but on a trade-off, because initially what happens whenever you go for a company, there are few companies that are only interested in the skill set, like they don't have any criteria for the percentage, number one. But number two, there are few companies, what happens when you go for a campus placement, so they usually keep a trade-off, like this is a minimum criteria, then only people who can take the aptitude test. It only happens because like there are many people, so they want to filter at the initial stage. So it's better if you can trade off both at the same pattern. At least keep your percentage at least to minimum first class, and then you can keep growing your practical skills. But don't go lower than first class. That's a suggestion to you. Yes, I'm a chemical engineering student. I want to become an entrepreneur in future, inshallah. How to come up with innovative ideas to start a startup in our field? Okay. He's a chemical engineering student, final year. It is all about what problem आप solve कर रहे हो. When you talk about startup is all about कि आप किसी की तकलीफ दूर करोगे तो ही आपको कोई पैसा देगा. Simple सी बात है, right? So आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उस पर डिपेंड करता है.
ठीक है, अगर आप अच्छा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स आई हैं. Whenever you get, आपके पास कभी वक्त मिलेगा, आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरी स्कीम्स लिस्ट डाउन रहेगी, जितने भी स्टार्टअप्स की स्कीम्स हैं, कंप्लीट एवरीथिंग. द वेबसाइट इज वेरी वेरी एक्टिव, हर चीज अपडेटेड है. Okay, I want to do engineering abroad. What options do I have? So for abroad, I'm not the right person for it. If you can talking about India, I can really help you out. If you're talking about MS, I can really help you, but not for graduation. Is automobile engineering a good career? Yes, 100%. Condition apply. You have to be good at it. Is there scope in BTech in computer science engineering? What are the job opportunities in this field? I mentioned you all the different categories, my dear, all the different segments. Even if you're doing a computer engineering, you can fall into all the different categories for it. So scope is ultimately is about how good you are. What will happen, my dear friends? What happens? You speak to one person. For example, he's from computer engineering. Example, okay? He'll say some good points because he had a very good journey. After facing some difficulty, he had a very good journey at that moment, right? So he'll give you good points. When you speak to someone, some XYZ person, who at that moment, at that particular moment, he doesn't have a good journey with that particular branch. So the points will be negative. So you will be getting a negative as well as a positive reviews, because everyone, what they will speak about their own journey. Don't think they're speaking about their own branch. They are speaking about their own journey. That's the basic difference. तो उनकी जर्नी का आपके ब्रांच से आप रिलेट मत करो चीज को. हर ब्रांच का स्कोप है, कंडीशन अप्लाई, उसकी आपको इन डेप्थ मालूमात होना चाहिए. बिकॉज आप जब तक आपकी नॉलेज नहीं होगी, आप वो नॉलेज से किसी के काम को हल, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो लोग आपको हायर क्यों करेंगे या लोग आपको पैसे क्यों देंगे? सिंपल सी बात है. थैंक यू. Yes, ma'am. Yeah. Hello, sir. I have recently completed my BTech in mechanical engineering. I was planning to do masters in engineering management. I want to know what is the scope of this course in post-COVID-19 world. Sir, I feel forget about talking about the post COVID-19, because again the things have to go normal. Either it will take 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. It have to work, right? And people who are good at it, people will surely adopt you. I may talk about when you're talking about a techno management. If you have that kind of team leadership and like teamwork kind of stuff, if you have that kind of skill set, trust me, you should definitely go for it. It is an amazing career for you, because there are people like in market you will get completely for administrative purpose, and there are people who will get completely for the technical purpose. But if you have a skill of techno and management, that is something like win-win situation. What is the procedure for admission for colleges in India for abroad students who studied from CBSE board till 12th? That is like, since I didn't went into more detail about the admission. So there is something known as, if your parents are domiciled from India, like if your parents have a domicile, if your parents are from here, so you fall into category known as type B category. So even if you have done complete education from abroad, so you fall into type B category, then you can take admission for by either you can give the MSCT, either even if not MSCT, you can give the JEE. So for with the all JEE ranking, you can get admission in Mumbai or in India in any of the university. With JEE, if you are giving JEE, you are available, like you can approach to any of the institute all over India. Many a times Muslims are rejected as pilots. So is it preferable to do aeronautics? Sir, that's what I said. You spoke to someone, so he related, like उसने अपनी journey वो branch से relate किया, right? So I think you might have spoken to some individual who belongs to who believes in Islam, or 1 or 2 people or 3 people or 4 people, whatever. So he said his own journey, right? So that is all about his journey. So you don't relate his journey to that particular branch. It is all about the skill set. Simple. I'm in second year electronics engineering. What future technologies are being developed
that have a convergence between computer science and electronics? IoT is one of the fantastic example for the electronics and computers. I have done BCA. Do I have any future in government sector? Government sector, yes. After graduation, there are various courses for it. Like for example, if I talk about the banking sector, where there are various you'll be finding various IBPS, that is one of the website for banking sector. Please do visit it. You'll find the various examination for a graduation. So any graduation, either it can be from commerce, engineering, any kind of graduation, they can apply for it, and they have like lots of seats for it, and they have a very good pay package again. So this is one of the segment. There are various for it for any graduation. Okay. Is master in computer application good option after electronics and telecommunication engineering? Master in computer application. After EXTC. If you ask me, I would say no. In spite of that, you can really, if you're really interested in computers, so better you do some courses for it. Because there are like a fantastic platform like Coursera, Udemy, edX. So you can do courses for it. It could be like 3 months or 6 months or 8 months of courses with faculties having from universities like from MIT to Indian universities. So you can go for it instead of going for MCA, because it is all about skill set. You have already done a base thing which is required. That is your graduation. About that, it is all about skill set. So if you only need skill set, go take it online, because we have ample of time right away, right? So you can take it. There's a question, sir. Can you tell some details about IoT? IoT, I don't think so. This is the right platform. This is my number, which is there in front of you. You can connect to me. I'll really help you out with that. Okay. As a student, how to find industrial problem statement for project? So it is very easy. Whenever you do a project, what we do at this moment, whenever you find a problem, हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, right? हम लोग गूगल पे ढूंढते हैं, because that is the way हम लोग करते हैं, right? तो सही तरीका कैसा है, कोई भी हम लोग अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम के जाके जो जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उनसे बात कीजिए, ठीक है? हम लोग कुछ बात करें तो हमें प्रॉब्लम एक स्कूल का एक है जिसमें हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, पेरेंट्स और टीचर्स का कम्युनिकेशन जो हो रहा है ना स्कूल में, वो बराबर नहीं हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम लोग इस पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. सो सबसे सही तरीका क्या है, आप स्कूल जाइए, टॉक टू 10 पीपल, 10 टीचर्स, आप पेरेंट्स में, वही स्कूल के पेरेंट्स आइए, तकरीबन 10 पेरेंट्स से बात कीजिए. दैट इज द वे आप यू शुड स्टार्ट, बिकॉज जब तक आप ये प्रॉपर आप डेटा जमा नहीं करो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चीज का है, तो आप उसको आइडिएट लेवल पे, हम लोग जो बोलते हैं आइडिएट लेवल पे बोलते हैं, उसके बाद हमारा आता है प्रोटोटाइप लेवल. तो हम वो आइडिएट लेवल पे उसको रिफाइन कैसा करेंगे कि हमारा कोर प्रॉब्लम क्या है और उसको हम लोग क्या सॉल्व करें. बिकॉज सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 आवर्स है तो हमने कम से कम 50 घंटे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफाइन करने में डालना चाहिए. तो ये सही तरीका है कोई भी प्रोजेक्ट करने का, ये मेरा मानना है. चाहे आप स्टार्टअप भी करें, चाहे आप इंक्यूबेशन भी करना चाहिए किधर जाके, तो आप प्रॉब्लम को रिफाइन कीजिए. एक बार प्रॉब्लम सही पे रिफाइन हो गया ना, देन उसका प्रोसेस काफी इजी है, बिकॉज आप काफी चैनलाइज हो जाते हो कि अभी अगले स्टेप में क्या करना है, इसको हम लोग को आइडेंट करना, जाके हम डिस्कशन करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करके फिर मार्केट में लाते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए. तो ये एक स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो मैं काफी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं सेशन लेता हूँ, या इनफैक्ट टीचर्स लोग के लिए मैं सेशन लेता हूँ, जिसको हम लोग डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं. सो आई वोंट गो डेप्थ इनटू इट, बट स्टिल एक शॉर्ट ब्रीफ था आपके आंसर के क्वेश्चन के लिए. I'm a master's in manufacturing science and engineering. What next? Master in manufacturing Science and engineering. Next is, you have already got your graduation and masters, you have got a good set of skill set. Go for any company wherever you would love to wherever you want to utilize your skill set. Either if you are very good into research and development, then you can really try for your PhD, because at this moment all the forms for all the university, the forms are open at this moment, because the forms would be open from June to August or maximum September mid, only for the few university because of the COVID-19. But June to August is the maximum duration where all the PhD forms are available for it, for all the university. So you can also go for that. Once completed chemical engineering, what should be the next step to enter the oil sector? Oil sector, I can connect you with some people with oil sector, that I can help you out, because I don't have that kind of oil sector expertise for it. I can help you in connecting people, that I can do it, very sure. When is the next step to enter the oil sector? Oil sector, I can connect you with some people with oil sector, that I can help you out, because I don't have that kind of oil sector expertise for it. I can help you in connecting people, that I can do it, very sure.
What's the scope of electrical engineering? Every domain, it's amazing. It's amazing. Amazing. I'll give you one of the example, like one of a student who went to electrical, like very average student throughout the engineering, but still he had a very good skill set. So even after doing an engineering, he made sure that within 3 months he could generate a good skill set about the electrical design network. So he got a chance to visit. He got a chance to work in New York as well within a span of 7 to 8 months. So that is the various success stories. You will find people in electrical engineering who didn't got a very good start, like working for 2 years. So it will vary from like person to person. But the core point is that you need to have a good skill set and make sure you keep on trying for it. Don't settle for less. Keep on trying for it. That is the only way to grow. Okay, I want to go into aviation sector. I'm a diploma holder in mechanical engineering. Aviation, not the right person for it. I know about it, but since I don't have a good expertise in that, but I can help you in connecting with all the aviation aeronautical queries. I'll make sure I'll send our contact details with the AMP team and they can share it to you. Don't worry about it. After engineering, you should do specialization courses or concentrate on the core field itself. It varies what passionate you are having it for developing that particular segment. For example, during engineering, but obviously you'll come to a conclusion where you want to work for it. Either you want to work only for example, if I'm a student of electronics, example, okay. So you'll come to know, okay, if I want to completely work into a hardware or completely work into a hardware or hardware and software. So depending on that skill set, I'll start improvising my skill set, right? So it is always better, my dear colleague, if you're into your third year, make sure from third year onward, you start making a skill set in more detailed manner. So what is the best way? For example, a person who is into first year engineering, trust me, this is a way if you can flow for it. If you're in first year, if you will be going to second year this year, start like attending courses. Like for example, if you are from any domain, any branch, okay. So you know in any branch, like there are 5 to 6 different branches where you can enter into the market. So start doing a basic courses via completely online, which are completely available for it, and many of them are free, of course. So start attending the courses for that particular second year. So what will happen? So you will have a taste for all that courses. In third year, streamline to 1 or 2 from 6, and make sure that if whatever you are selecting 1 or 2, and start emphasizing on that particular segment in more detail. Start doing more courses, more certifications, start doing more projects on it. And finally, by the time you reach final year, you are very clear which segment you have to click. You have to go for it. So this is a flow. If you can start from your second year to final year, trust me, it will really help you. That is the only way, because what happens if you don't follow this? If you come directly to your final year, if you question yourself, where should I go for it? Then it is a very difficult challenge for you, because again you have to start creating a skill set after you're clearing your graduation, right? So again, you will be investing more 1 year only to create your skills. So don't waste your year after your engineering. Make sure you start creating a skill from your second year onwards. It will really help you. Okay, I think this would be the last question. Which is the best field in engineering for girls to settle abroad? Again, like trust me, like except Allah, no one can tell you, right? What best field you would enter into it. Okay. Normally, like people have a verdict, like go for computers, it is completely desk job and so on. Like trust, you will find girls doing civil engineering, and I know people. There are few of my students are there, and even after doing civil engineering, like they have a job on desk job, so they are doing it. So there is nothing like a field oriented. If you go to a mechanical, you won't be getting a desk job. If you go to IT, you won't be a desk job. But ultimately, on a larger version, like people have a perception like about the software companies, because that is completely desk job. So on a safer side, people say it computer, IT, electronics, telecommunication, and so on. That is something complete desk job. So they prefer as a girl. But trust me, start watching some videos, my dear colleague. Start watching some it. See where your interest really lies for it. Because what will happen, whatever branch you select for it, even if you finish that your graduation, you might enter into a master's, then you might explore something, a techno-com management field also. So don't be very specific with one branch. Start seeing some YouTube videos. You'll understand what kind of core job it is. What is really fascinating you? Which branch is really fascinating you? So go for it, because it is all about your passion.
So it is, you don't need someone to tell you, because like what happens in 10th and 12th, you need your parents to start studying, do this, do that. Why are you doing this homework? Why have you not completed this assignment, and so on. In engineering, it shouldn't be like that. It should be totally passionate about it, because you should know where you'll be spending your coming 4 years. So if you're passionate about it, things will really work. Thank you. My question to you is that I have seen 30 to 40% of students doing engineering, but ending up doing a job of commerce sector. Please guide. There's only one reason for it, because there is no skill set for it. The reason the people switch for it, it is not about the job. People usually say yes, because on the social media you will find people saying that nahi, you don't get job and so on. The only thing is that we don't carry a skill set for it, because of the curriculum, because of the few students, what teachers they would be having at that time. So there are multiple factors to it. There are multiple people who are involved with, but he's also one of the responsible person, because if he thought during his second and third year, if he's not getting what he should be getting he should have at least tried on himself. He's only one of the person who is responsible, but there are many factors: the syllabus, the institute, the faculty, and so on. But again, I say कि like कहता ना जहाँ पे रिस्क लिखा है वहाँ पे चीजें keep on flowing for it. I think Avabhi, we have completed the question and answer session. We have attended to almost all the questions, the important ones. Yeah. Thank you so much, Asma ma'am. And Avabhi, to be honest, a brilliant session from your end as well. I just want to add a couple of things here. I see that many questions were raised in terms of doing their education in IIT, IIM, and international studies. So just want to let you all know that we have sessions planned ahead for these as well. On 30th of June, we have a session which will be career in IIT, IIM, and other INIs. And on 3rd of July, which will be the last session for this phase, we have planned this session for international education opportunities. So you can definitely join those sessions to get your queries answered in case if you want. And it was a brilliant session overall. I have our president with us, Mr. Amir Idrisi. I know this is not planned or something, but since he is himself a software engineer by qualification, I would request him to just talk for 2 minutes and then we'll end the session, inshallah. Amir bhai, only for 2 minutes. सिद्धार्थ भाई, मैं जो है बात नहीं करना चाह रहा था, but still you have given me. So एक क्वेश्चन बीच में किसी का आया था, तो I would take that as a reference और उस पर ही बात करता हूँ. किसी ने पूछा कि आई एम अ मुस्लिम एंड मुझे एरोनॉटिक्स फील्ड में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो आप ये समझिए कि मजहब कभी भी क्राइटेरिया नहीं है किसी भी काम के लिए, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में. सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपका स्किल सेट कितना स्ट्रांग है. तो इफ यू आर एक्सपर्ट, इफ यू हैव स्ट्रांग स्किल सेट, these companies are there to make profit. मतलब ये लोग जो है मजहब के प्रमोशन के लिए कोई भी काम नहीं करता. ये सारे ही लोग जो है अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं, और अपने बिजनेस के लिए हर इंसान ये चाहता है कि अच्छे से अच्छा ऑप्शन में हायर कर सकूं, अच्छे से अच्छे टैलेंट को, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को अपने साथ रख सकूं. तो जब भी आपको लाइफ में कोई डिफिकल्टी पेश आए, कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन अगर देखने मिले, कहीं पर प्रॉब्लम देखना पड़े, तो हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग अपने टैलेंट के जरिए उसको बीट करें. किसी का रैंक कोई अगर 2 घंटे मेहनत करता है तो हम लोगों को कोशिश करनी कि हम लोग 4 घंटे मेहनत करेंगे. कोई 3 घंटे अगर काम करता है तो हम लोग कोशिश करनी पड़ेगी हम लोग उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं. तो गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल्स इज दी सोल्यूशन फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. कहीं पर भी ये प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभार कुछ इस तरीके के वाकयात हम लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं जो बहुत रेयर हैं. इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, और मतलब कई लाख कंपनीज जो है यहाँ पर काम कर रही हैं, और उसमें बहुत सारे लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं. तो इन जनरल इस तरीके का कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम को बीट करना है. उसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग अपने फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करें. दोज हु आर बेस्ट, लोग दुनिया उनके पीछे भागती है, फिर उनको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता. तो हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि वी शुड be best in the market, we should be best in the industry, we should be best in the field which we have chosen. तो ये this should be a mantra for each and every one. अगर हम इस पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. इंजीनियरिंग एक पहला पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट ये था कि इंजीनियरिंग को लेकर बहुत सारे
क्वेश्चंस हम लोग सुनते हैं कि इंजीनियरिंग अच्छा करियर ऑप्शन है कि नहीं है, जॉब्स मार्केट में नहीं है, हम लोग नेगेटिव न्यूज बहुत सुनते हैं, कई हजार सीट्स जो है एम्प्टी जा रही है इंजीनियरिंग की। तो ये सब हो क्यों रहा है, उसका बेसिक रीजन ये है कि जो एजुकेशन हम लोग लेते हैं वो हम लोग फोकस नहीं होते, हम लोग जो है अपने स्किल सेट पर काम नहीं करते। एग्जाम को पास करना सिर्फ हम लोगों का मकसद होता है। तो जो लोग स्किल सेट पर काम करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि आज दौर ऐसा आ गया है कि इवन विदाउट डिग्री यू कैन गेट जॉब इन गूगल। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी है। आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, आपका स्किल सेट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सारे ही लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज पे ज्यादा मेहनत करें और उस पर ज्यादा फोकस करें, उसको सीखने की कोशिश करें। और स्पेशलाइजेशन का दौर है, कोशिश करें कि स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम जो है ना हम लोग ढूंढें और उसमें जो है कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। जो जिस हिसाब से दुनिया तेज रफ्तारी के साथ बदल रही है, जिस हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस हिसाब से बिजनेस इंटरप्शंस हो रहे हैं, तो ये दुनिया सिर्फ एक्सपर्ट्स की रह जाएगी। इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट यू आर नॉट नीडेड, है ना। मतलब वी नीड कैसा है कि आप इफ यू आर नॉट मास्टर ऑफ एनीथिंग, जो है ना मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो ये अब दुनिया में नहीं चलेगा। यू विल हैव टू बी मास्टर इन एटलीस्ट वन फील्ड। तो ट्राई टू फाइंड दैट फील्ड एंड पुट योर ऑल एफर्ट्स इन दैट फील्ड इंशाल्लाह, एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इस तरीके के सेशन हम लोग लगातार करते रहेंगे। और ये इस पहले फेज में भी अभी आज तीसरा लेक्चर है, इसके अलावा भी इस तरीके से लेक्चर्स जो 3 जुलाई तक चलने वाले हैं। उसके बाद पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस पर भी वी आर प्लानिंग टू कीप लेक्चर्स। उसमें बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग ऑप्शंस हैं एंड वी विल कीप लेक्चर्स स्पेशली ऑन दैट। जैसे एरोनॉटिक्स की बात कर रहे थे आप लोग, इसमें बहुत सारे लोगों का एरोनॉटिक्स पर क्वेश्चन है, तो नवाब साहब ने भी कहा कि हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ। तो ऐसे स्पेशलाइज करियर ऑप्शंस पे वी विल कीप लेक्चर, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग उसको अटेंड करिए। प्लस हम लोगों ने चैट बॉक्स में आपके साथ एक लिंक शेयर की है जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, एटलीस्ट मोर देन 700 वॉलंटियर्स आर देयर, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जब भी जरूरत लगे आप उनको कॉल करिए, उनका फोन नंबर वहां दिया हुआ है, उनका ईमेल आईडी वहां पर दिया हुआ है। सिर्फ कोशिश ये करें कि जो टाइमिंग वहां मेंशन्ड है उसी टाइम जोन में उनको कॉल करें ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। तो यू कैन टॉक टू ऑल दिस पीपल, दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस पीपल, और वो लोग आपको एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। ओवर टू यू शहजाद भाई। Thank you so much, Amir bhai, for this precious talk. We'll be ending this session with a dua, inshallah. So, thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ya Awwal al-Awwalin, Ya Akhir al-Akhirin, Ya Dhal Quwwati al-Mateen, Ya Rahim al-Masakin, Ya Arham al-Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى بهذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you everyone for joining this session. Tomorrow again we will have a session on career in commerce. So request you all to be on time at 3 p.m. inshallah. Thank you. Assalamu alaikum.